ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو گھروں کو لوٹتے ہوئے، جہیز کا سامان جلاتے ہوئے۔ یہ ظلم عظیم ہوا ہے، یہ قیامت صغریٰ تو بہت لوٹ مار ہوئی، یہاں کے مسلمانوں نے ہماری بہت حفاظت کی ہے۔ جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں اورنگزیب ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ۔ تو ناظرین آج ہم آئے ہیں خصوصی طور پہ جڑاوالا میں، جہاں پر کل جو ہے وہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے۔ اس کے بعد کرسچن کمیونٹی کے گھروں کو جلا دیا گیا اور انفارچونیٹلی ابھی تک کی جو ابتدائی معلومات ہیں کہ 11 گرجا گھروں کو بھی جو ہے وہ آگ لگا کے نظر آتش کیا گیا۔ اس وقت ہم اس بستی میں موجود ہیں جہاں پر یہ سارا معاملہ پیش آیا ہے۔ نہ صرف انٹرنیشنل میڈیا بلکہ لوکل میڈیا کے نمائندے اور یہاں پر دور دراز سے NGOs جو ہے وہ یہاں پر آ کر یہاں پر سروے کر رہی ہیں۔ تو فیصل آباد کے کچھ سینئر صحافی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ حسام صاحب ہیں، حسام صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، بتائیے گا اس سارے میٹر کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی کل کا ہم ادھر ہی موجود تھے سارا دن، اور بڑا افسوس ایک لفظ چھوٹا ہے اس سارے میٹر کے اندر۔ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو گھروں کو لوٹتے ہوئے، جہیز کا سامان جلاتے ہوئے، چیزوں کو اندر سے لوٹ مار کرتے ہوئے۔ ایک بندے کا غصہ تھا، اس نے جو بھی عمل کیا اس کی سزا اس کو قانون دے گا، اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے ہمارے قانون میں، اس کو نہیں اڈاپٹ کیا گیا۔ جتھے بنائے گئے، اعلانات کروائے گئے، دھاوے بولے گئے۔ یہ جہاں پہ آپ موجود ہیں یہ کرسچن کالونی ہے، اس کے ساتھ ہی پچھلی گلی میں وہ جو ملزم ہے اس کا وقوع والے کا گھر ہے، اس کے اوپر وہ راہ کہیں سے ملے، ادھر آئے، پھر اعلانات ہوئے، اس کے بعد دھاوے بولے گئے، یہ لوگ بھاگے۔ اس کے علاوہ عیسیٰ نگری شیروانہ پل پہ میں رہا ہوں 5-6 گھنٹے، وہاں پہ جو ہم نے دیکھا گھروں کو نظر آتش کیا گیا۔ تو اس پہ افسوس کیا جا سکتا ہے اس ساری صورتحال میں، کیونکہ یہ سامان، یہ گھر بنانے بہت مشکل ہے آج کل کے دور میں۔ ادھر ایک ہمیں بچی ملی ہے، اس کا جہیز کا سامان سارا جلا دیا۔ آج کل کے دور میں جہیز کا سامان کیسے بنائیں گے؟ یہ غریب گھر ہیں، کچھ ملازم ہیں، صفائی والے ملازم ہیں، صفائی کا کام کرتے ہیں، کچھ دوسرے، تو ان کا یہ جو نقصان ہے نا یہ پورا نہیں کر سکتے اس کو۔ اور پھر ہم نے دیکھا ہے گرجا گھروں کے اندر، چرچز کے اندر جو ان کی مقدس کتابیں ہیں، وہی آپ وہی چیز کر رہے ہیں جو انہوں نے کر دی ہے، کہ آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں نا۔ پھر نہ دیکھا ہی نہیں کسی نے، کوئی لوگوں کو روکنے والا نہیں تھا، پولیس یہاں پہ تھی نہیں، پولیس نے روکا ہی نہیں۔ ہم نے ادھر شیروانہ پل پہ وہ چرچ جلا رہے ہیں، ہم کال کر رہے ہیں پولیس کو کہ آئے ادھر، کوئی نہیں آیا، جو جس کا دل کیا اس نے کیا۔ تو یہ بڑا لا اینڈ آرڈر کا فیلئر ہے، میں سمجھتا ہوں سیکیورٹی اداروں کو اس کو مینیج کرنا چاہیے۔ اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوتے ہیں ہماری کمیونٹی میں، اس کو مینیج کیا جاتا ہے، فوری طور پہ ایکشن کیا جاتا ہے، لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، لوگوں کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ جس کا جو دل آیا اس نے وہ کیا۔ بہت شکریہ حسام صاحب، فیصل آباد کے سینئر صحافی ہیں اور کل کے جو واقعہ ہے اس کے چشم دید گواہ بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھا ہے کہ کس طرح جو ہے یہ معاملہ بڑھتا گیا اور گھروں کو کس طرح آگ لگائی گئی۔ جہاں پہ جس جگہ پہ ہم موجود ہیں عیسیٰ نگری کا یہ علاقہ ہے، تقریباً یہ 7 ہی مسلمانوں کے گھر ہیں اور اس سائڈ پہ جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی کے گھر ہیں، اور یہ چرچ تھا کرسچن کمیونٹی کا، جہاں پر یہ چرچ جو ہے وہ بری طرح جس کو نظر آتش کیا گیا۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں بھی جو ہے وہ کتابیں تھیں، اور وہ کتابیں جس طرح ہمارے لیے قرآن پاک مقدس ہے اور اسی طرح ان کے لیے بائبل مقدس ہے، اور اسی طرح بائبل کو جو ہے وہ افسوسناک طریقے سے یہاں پر نظر آتش کیا گیا۔ تو یہ سامان چرچ کا، لوگوں کے گھروں کا سامان نکال کے اندر سے باہر لا کر جلایا گیا۔ ابھی یہ دیکھیں ذرا، انٹرنیشنل میڈیا یہاں پہ آیا ہوا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا اس کی کوریج کر رہا ہے، اور لوگوں سے ہم مزید بھی کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ابھی یہاں کے کچھ اور محلے دار بھی موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ جی ذوالفقار علی۔ اچھا ذوالفقار صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں پہ ڈیفینیٹلی محلے دار بھی ہیں، کبھی ایسا ڈسپیوٹ تو بنا نہیں تھا، انفارچونیٹلی یہ ہوا کیا معاملہ، یہ بتائیے گا۔ اب آپ بھی ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، تو بتائیے گا یہ معاملہ ہوا کیا یہاں پہ؟ سر اصل میں یہاں سے ہم عرصہ دراز سے رہ رہے ہیں، کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا، کبھی کوئی معاملہ نہیں ہوا، کبھی آپس میں ہمارا کوئی طرح کا مسئلہ نہیں بنا، مسلم مسیحی کمیونٹی کا کوئی پرابلم نہیں آیا۔ چھوٹے موٹے محلوں میں رہتے ہوئے معاملات آتے ہوں گے، لیکن ایسا کوئی معاملہ نہیں آیا کہ مسلم مسیح فسادات کی جو ہے نا وہ زد میں آئے گئے ایسی چیز۔ ایک فیملی کا
एक अमल था, गलत अमल था, हमें तकलीफ़ है, इनमें से भी लोगों को तकलीफ़ हुई। ये हमें मिले हैं इस वकूए से पहले, कम्युनिटी के लोग, उन्होंने भी उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, उसकी मजम्मत की है, क्योंकि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, कुरान पाक की बेहुरमती की, इन्होंने भी उस अमल को गलत किया। लेकिन हमारा भी यही मुतालबा था कि जिसने किया उसको सज़ा मिले, कानून दे उसको सज़ा। उसमें एक बंदा इन्वॉल्व है, 10 बंदे इन्वॉल्व हैं, लेकिन दे कानून से उसको। वकूआ है सुबह फजर के बाद का, इसमें सबसे पहले मैं तो कहूँगा कि इंतज़ामिया बिल्कुल नाकाम हुई है, उनके जितने सिक्योरिटी इदारे हैं सब फेल हुए हैं। क्योंकि सुबह का वाक़या है, 10 बजे तक हम मोहल्ले वालों ने इनको सेफ्टी दी है, इन घरों को। अच्छा, आपने इनको सेफ्टी दी है? 10 बजे तक हमने सेफ्टी दी है। ये जितने करीब के मुस्लिम लोग थे, सब ने 10 बजे तक इनको सेफ करने की कोशिश की है। हमने इनको मशवरे दिए हैं कि यार भाई अपनी जान बचा के आप साइड हो जाएं, आपके घरों की सेफ्टी करने की कोशिश हम करते हैं, क्योंकि आप बेगुनाह, हमें पता है जिसने किया वो बेगुनाह नहीं, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जब एक बात आप समझते हैं कि मजहबी जो मामलात होते हैं उसमें जो रिएक्ट आता है ना, वो बहुत गलत आता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में तो बहुत ही गलत आता है, किसी भी चीज़ का, चाहे सियासी हो चाहे मजहबी हो। और ये जो हुआ है ना, ये दूसरा जुल्म अज़ीम हुआ। पहला जुल्म अज़ीम उसने किया जिसने गुस्ताखी किया, ये जो इस कम्युनिटी के साथ हुआ है ना, ये जुल्म अज़ीम हुआ है, ये क़यामत सुग़रा मैं तो यही कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से जलते हुए देखे हैं। यहाँ पे मुसलमान कम्युनिटी के लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत दुख में हैं, और उनका ये कहना है कि एक मुलजिम ने जो है वो मामला किया था, और उसके बाद जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ जो मामला हुआ है कि गिरजे जला दिए गए, घर जला दिए गए, घरों से सामान निकाल के जलाया गया, ये उससे भी बड़ा सानहा है। तो यहाँ पर ना सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग अफसरदा हैं, बल्कि इनके साथ साथ जो मुसलमान कम्युनिटी के लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अफसरदा हैं। नुमान ये देखिए ज़रा, इस साइड पे दिखाएं, ये लोगों के घर हैं, घरों से चीज़ें निकाल के जो है वो यहाँ पर जलाई गई हैं, और गिरजों में जो जिस तरह इबादत गाहों को जलाया गया, ये कोई भी मज़हब हो, ख़ास तौर पे दीन इस्लाम की बात करें कि दीन इस्लाम तो इस चीज़ की बिल्कुल भी इजाज़त जो है वो नहीं देता। तो यहाँ पर लोग आज आ रहे हैं, अफसोस का इजहार कर रहे हैं किस तरह यहाँ पर गिरजों को जलाया गया, किस तरह यहाँ पे जो है वो घरों में सामान निकाल कर जो है वो जलाया गया। तो लोग काफ़ी ज़्यादा अफसरदा हैं, बड़े गमज़दा हैं। कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैसर मसीह। अच्छा, कैसर साहब, ये बताइएगा कि ये बड़े अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इस पे हमें बड़ा दुख है, मुस्लिम कम्युनिटी को बड़ा दुख है, जो देखता है उसको बड़ा दुख है। ये मामला आखिर पेश आया कैसे है? ये सुबह 5 बजे मस्जिदों में ऐलान हुआ कि भागो, हम तो घर छोड़कर भाग गए, बच्चे छोटे बड़े लेकर। तो बहुत लूटमार हुई, यहाँ के मुसलमानों ने हमारी बहुत हिफाजत की है, उन्होंने घरों में तला दी है। जो बाहर से आए हैं उन्होंने लूट मार, कोई चीज़ नहीं हमारी छोटी, जेबर तक, टीवी, सीढ़ियाँ, फ्रिजें, ये देख लो आप, सारा कुछ। मतलब यहाँ के जो आपके मोहल्लेदार मुसलमान थे उन्होंने आपको बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश की? जी, उन्होंने की है, भाई इमरान है, उन्होंने बहुत अच्छी प्रोटेक्शन दी है हमें, तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे मुसलमान पाकिस्तान में हों जो मसीहत के साथ मिलकर खड़े हों। हमारी अपील ये है गवर्नमेंट से कि जो हमारे घरों का नुकसान हुआ है, 2-3 हज़ार घर जो जड़ा वाले में सड़ गया है, गाँव, हमारी अपील है उनके साथ तामन किया जाए। जी देखिए जी, यहाँ पर हर शख्स जो है वो गमज़दा है, और यहाँ पर ये हमने जब क्रिश्चियन कम्युनिटी के कुछ लोगों से बात किया तो उनका ये कहना है कि जो यहाँ के मोहल्लेदार हैं उन्होंने हमारी मदद करने की कोशिश की है, लेकिन जो जत्थे बाहर से आए हैं, दूसरे इलाकों से आए हैं, उन्होंने यहाँ पर आके एक नहीं सुनी और यहाँ पर आके आग लगाना शुरू कर दी। और अभी तक की मालूमात के मुताबिक पुलिस ने उस मरकज़ी मुलजिम यासीन जिसने मस्जिदों में ऐलान किए थे उसको गिरफ़्तार भी कर लिया है। लेकिन दूसरी जानिब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का जिसने कुरान पाक की बेहुरमती की थी, अभी तक वो मुलजिम गिरफ़्तार नहीं हुआ। तो मज़ीद भी कुछ लोगों से बात करेंगे। और ये देखें नुमान, ज़रा इस साइड पे दिखाएं, ये लोगों के घरों का सामान है, लोगों के घरों का वो सामान जो
हर घर के इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, किस तरह घरों से बाहर से निकाल के इसको जो है वो जलाया गया है और किस तरह यहाँ पे लोगों के ऊपर जुल्म किया गया है। यहाँ पे कुछ और लोग भी हम कोशिश करेंगे बात करने की। अलबत्ता अभी तो यहाँ पर सूरत हाल इस तरह है जैसे क़यामत बर्पा होगी हो। किस तरह लोग मतलब इंसानियत जो है वो दुख का इज़हार कर रही है। यहाँ पर ये देखें किताब बाइबल के किताब के पेजेस जो है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। कितनी अफसोसनाक बात है कि ये बाइबल किताब के यहाँ पर जो अवराक पड़े हुए हैं। एक तरफ मुसलमान हमारी कम्युनिटी ये कह रही है कि कुरान पाक की बेहुरमती की गई है, तो ये देखिएगा बाइबल जो है वो एक मुक़द्दस किताब है, ना सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए बल्कि मुसलमानों के लिए भी एक बड़ी मुक़द्दस किताब है, उसकी भी बेहुरमती की गई और किस तरह आग लगाई गई। ये देखिए ये बाइबल किताब को किस तरह जो है वो आग लगाई गई। कितना अफसोसनाक बात है। ना सिर्फ ये क्रिश्चियन के लिए एक मुक़द्दस किताब है, ये मुसलमानों की भी मुक़द्दस किताब है। किस तरह हम अफसोस कर रहे हैं कि कुरान पाक की बेहुरमती की गई। क्या ये बेहुरमती नहीं, ये भी बेहुरमती है, ये भी बेहुरमती है। ना सिर्फ यहाँ के लोग क्रिश्चियन जो है वो इस बात पे दुख का इज़हार करें बल्कि मुसलमान जो इस इलाके के रहने वाले हैं वो भी दुख का इज़हार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी इंसानियत ही सबसे बड़ा मज़हब है। और जिस तरह घर जलाए गए हैं, आग लगाई गई है, ये कोई भी मुआशरा, कोई भी मज़हब, कोई भी मुल्क, कोई भी स्टेट इसकी इजाज़त नहीं देता। कोई भी मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता। और जिस तरह ये यहाँ पर मामलात बने हैं, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही मज़म्मत के लिए बहुत ही शर्मनाक जो है ये बात है कि यहाँ पर हमारे झंडे में अक़लियतों की जो है जगह बनाई गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम आज शर्मिंदा हैं कि हम अपने अक़लियतों की ही हिफाजत खुद नहीं कर सके और ख़ुद पे ही हमारे ऊपर एलिगेशन आ रहा है। और ये एक चर्च है, इसी तरीके से जड़ांवाला में 11 चर्च जो हैं उनको आग लगाई गई है। तो ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जड़ांवाला में। इसकी जितनी मरम्मत की जाए उतनी कम है। अलबत्ता वो देखें यहाँ पे लोग जो है वो किस तरह गले मिल के जो है वो यहाँ पे रो रहे हैं और बड़ा ही दुख का इजहार जो है वो कर रहे हैं। लोग चर्च को देख के जो है वो रो रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं, लोग बहुत ही अफसरदा हैं, गमज़दा हैं, चर्च को देख के रो रहे हैं। नमान ज़रा इधर दिखाइएगा, चर्च को देख के जिस तरह चर्च को जलाया गया, लोग इतने ज़्यादा अफसरदा हैं, इतने ज़्यादा गमज़दा हैं और देखा नहीं जा रहा कि ये इस तरह की ये सूरत हाल है। तो नाज़रीन, बड़ा ही मुझे खुद यहाँ पे आके बड़ा दुख हुआ है, बड़ा अफसोस हुआ है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि हमारे इदारे जो हमारी स्टेट जो है वो क्या करती रही है। एक मुलजिम का अगर कसूर था तो उससे पूरी कम्युनिटी को किस तरह टारगेट किया गया, ये इंतहाई अफसोसनाक है, जिसकी जितनी मरम्मत की जाए उतनी ही कम है। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। हमारी वीडियो अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।